good morning all. Myself Ankit Singh from Mechanical Engineering Department, and today I am here to introduce IC engine. IC engine means internal combustion engine. These are the contents which we cover in our entire syllabus. First is basic components. Here we discuss about the component, different types of component of the IC engine. Then after that, construction and working of 2-stroke and 4-stroke engine. After that, we discuss merits and demerits of IC engine according to environment, according to use. Then we discuss scavenging process. Scavenging process is just like exhaust phenomena done in the IC engine. Then after that, we introduce electrical vehicles, which is very useful or now very common for all in this scenario. Now we are here, we are start to discuss about heat engine. Actually, IC engine is totally based on heat engine. Heat engine is a device in which we convert heat or thermal energy into mechanical energy, which can then be used to do mechanical work. Or heat engine is a device which convert chemical energy of the fuel into heat energy, and subsequently heat energy is converted into mechanical power. These are the heat engine in which two types of temperature is there. One is high temperature source and the second is low temperature source. ये आपका जो है हीट इंजन का एक पूरा फिनोमिना है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट जो हाई टेम्परेचर वाले सोर्स है, कुछ हीट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक, जहाँ से ये पार्ट आपका एक्सट्रैक्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स. लेट्स सपोज वी फाइंड या वी गेट Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हीट सोर्स, देन इट विल गो इनटू हीट इंजन, or heat engine use this form of energy and do some work W. After that, some amount of heat is exhausted, then this will notated by Q2. So here temperature of source is T1, temperature of sink is T2, Q1 is heat flow from source to heat engine, Q2 is heat rejected from heat engine to sink, and W work output from heat engine. अब अगर हम यहाँ पर देखें कि दो आपका जो हीट है Q1 हीट, ये यहाँ पर क्या हो रही है, हीट इंजन में जा रही है, और ये क्या हो रही है, आपकी दो उसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो Q1 फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही है, आपकी कुछ वर्क में और कुछ क्या हो रही है, आपकी एग्जॉस्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है. सो वी राइट दिस इक्वेशन लाइक Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2. सो दिस इज द क्या, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बाय विच वी फॉर्म Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W. ये क्या है, आपकी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है. और इफ़िशेंसी का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि क्या, वर्क आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट या एनर्जी सप्लाइड. इफ़िशेंसी इज इटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1. W यहाँ हमने अभी फाइंड आउट किया है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1. यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ से निकल के आ गया क्या, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. अगर यही आपका हीट इंजन रिवर्सिबल इंजन की तरह बिहेव करेगा तो यही इक्वेशन आपकी 1 माइनस T2 बाई T1 में कन्वर्ट हो जाएगी.
तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन. Actually, total IC engine is totally based on this phenomena. This phenomena is heat engine. That's why we discuss heat engine here. हम लोगों ने जो है आपका हीट इंजन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो वहीं से ये सब क्या है आपका निकला हुआ है. ठीक है, यहीं से अब हम लोग क्या है थोड़ा और बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, और ये क्या है हम लोग इसको फिर से आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें आपका आईसी इंजन में. टाइप्स ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज इंटरनल कंबशन इंजन एंड अदर इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन. इन इंटरनल कंबशन इंजन फ्यूल इज बर्न inside a cylinder from which we collected some amount of energy from that. But in external combustion engine we burn the fuel outside the cylinder from where we collect the energy. So in internal combustion engine burning or combustion occurs in the cylinder. Occurs in the cylinder and the power is developed in the same cylinder. This is the example. मतलब जैसे हम बाइक कार ये सब किसके आपके इंटरनल कंबशन इंजन के एग्जाम्पल हैं. और हम लोग जो आज यहाँ मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है आपका इंटरनल कंबशन इंजन. फिर है आपका इंटरनल कंबशन इंजन. इंटरनल कंबशन इंजन इन इंटरनल कंबशन इंजन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन टू द वर्किंग फ्लूइड. मतलब ये आपका क्या होगा आपका आउटसाइड सिलेंडर के काफ़ी दूर रखा होगा, वहाँ पर हम लोग उसको बर्न करेंगे. फिर वहाँ से जितनी हमें एनर्जी चाहिए होगी वो हम क्या करेंगे लेंगे. ठीक है, तो ये जनरली हम लोग पावर प्लांट स्टेशन में या जितने भी आपके पावर प्लांट के जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, या जितने भी आपके फिनोमेना हैं, ठीक है, ये टरबाइन है, ये सब क्या है आपके एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल है. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन. मैकेनिकली सिंपल हम लोग इसको कंसीडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन. लो इनिशियल कॉस्ट. शुरुआत में इसकी कॉस्ट क्या काफ़ी लो होती है. ठीक है. ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ बॉयलर. क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या आपका बॉयलर, कंडेंसर, एवापोरेटर ये सारी चीज़ें क्या हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं. सिंपल सा एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, उसी में फ्यूल को बर्न कराते हैं. ठीक है, और उससे जो भी हमें पावर आउटपुट मिलता है और उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. ठीक है, उसको बर्न कराने के बाद प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, प्रेशर को लगातार रेगुलेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर हम लोग इतना ध्यान इस पर नहीं दे पाते हैं. ठीक है, तो इसलिए उस रिस्पेक्ट से ये आपका क्या बहुत इजी कन्वीनियंट है विद रिस्पेक्ट टू आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन. हाई इफ़िशियंसी. और यहाँ पर लगभग आपको इफ़िशियंसी एक्सटर्नल कंबशन इंजन से काफ़ी हद तक क्या है ज़्यादा ही मिलती है. ठीक, या अगर ज़्यादा नहीं मिल रही है, ठीक है, तो उसके अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या उसके कॉस्ट के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर इफ़िशियंसी क्या है आपको ज़्यादा मिलती है. ठीक है, वेट रेशियो के रिस्पेक्ट में भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, हाई पावर टू वेट रेशियो. वेट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपको पावर भी क्या ज़्यादा मिलती है. ठीक है, आप देखिए छोटा सा इंजन होता है और उसके रिस्पेक्ट में क्या आप लोग काफ़ी वर्क कर रहे हैं. ठीक है, और फिर उसी रिस्पेक्ट में क्या है आपका जो पावर प्लांट है वो क्या बहुत बड़े एरिया में होता है. ठीक है, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उस रिस्पेक्ट में उसके वेट के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें कि आपका जो इंजन है उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो या 50 किलो के आसपास होगा. ठीक है, और उसके हिसाब से वो क्या पावर आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है और वो क्या टनेज में होगा और उसके हिसाब से जो उसको पावर आउटपुट है वो क्या आपको नहीं देगा. तो ध्यान रखिएगा क्या है हम बात ये कर रहे हैं कम और ज़्यादा किसके रिस्पेक्ट में आपका वेट रेशियो के रिस्पेक्ट में. ठीक है,
अभी हम लोग चलते हैं आईसी इंजन के बेसिक जो कंपोनेंट हैं, ठीक है, या बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको कैसे समझना है, ठीक है, या उसको क्या हम लोग कहते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके बेसिक वर्किंग अगर समझनी है तो वर्किंग को समझने के पहले क्या है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखने होंगे, ठीक है, उसके कुछ बेसिक जो कंपोनेंट है उनके नाम क्या हैं, ठीक है, या उसका जो भी एंड है या इनिशियल है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या है, आईसी इंजन के छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या टर्म हम लोग यूज़ करते हैं किसी आईसी इंजन को डेवलप करने में या आईसी इंजन को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, उस पर सबसे पहला जो आता है आपका है टॉप डेड सेंटर। क्या आता है आपका? टॉप डेड सेंटर, ठीक है। इसको हम लोग, आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा सुना होगा यही है आपका क्या है, टीडीसी, ठीक है, आपने सिर्फ टीडीसी सुना होगा। तो ये क्या है आपका टॉप डेड सेंटर, ठीक। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपका फिगर है, ठीक है। इस फिगर में, ठीक है, ये आपका, अभी हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है, तब तक देखिए। ये क्या है आपके इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है। इसके बाद में ये आप देखिए, ये क्या है, ये आपको यहाँ पर एक सिलेंडर दिख रहा होगा, ये पूरा, ठीक है। इस सिलेंडर में ये पार्ट है आपका पिस्टन, ठीक है। ये पिस्टन क्या करता है आपका, रेसिप्रोकेटिंग मोशन अकर करता है इसमें, इस पर्टिकुलर सिलेंडर में ऊपर अप एंड डाउन मोशन करता है, ठीक है। ये अप जाता है, ठीक है। अप जाने में जो ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा इस सिलेंडर में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये पिस्टन क्या है आपका इस वाल्व से क्या कभी भी टच नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, इससे थोड़ा सा नीचे ये पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये पिस्टन क्या है आपका जैसे ही ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या एक मैक्सिमम हाइट कवर करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये हाइट मान लीजिए क्या है आपकी, ये, ठीक है, यहीं तक ये जा रहा है, इसके बाद ये क्या आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी पार्ट को या इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपका क्या मैक्सिमम हाइट वो कवर कर रहा है। तो ये क्या है, इट इज़ द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज फॉरदेस्ट फ्रॉम द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट से क्या रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर, ठीक है। या दूसरे टर्म्स में आप लोग इसको बोल सकते हैं कि पिस्टन क्या जो भी मैक्सिमम हाइट इस सिलेंडर में अगर कवर कर रहा है, ठीक है, वही क्या है आपका टॉप डेड सेंटर, ठीक। अब अगर मान लीजिए ये तो आपका मान लीजिए क्या है आपका जो इंजन है ये वर्टिकल रखा हुआ है, मान लीजिए यही इंजन क्या है आपका एक्सटर्नल मतलब आपका जो है हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या है इनर डेड सेंटर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अगर यही क्या है आपका जो है हॉरिजॉन्टल अगर रखे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर डेड सेंटर, ठीक है। जैसे कि हम लोग हीरो होंडा के कुछ इंजन देखते हैं तो क्या आपके हॉरिजॉन्टल रखे रहते हैं, ठीक है। तो उस केस की मान लीजिए बात हो रही है। तो देखिए, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन टीडीसी इज नोन एज क्या, इनर डेड सेंटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इधर आपने क्या वाल्व यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मान लीजिए यहाँ तक कि आपका पिस्टन क्या जा पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपका आईडीसी बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे आपका आईडीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये है आपका बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। बॉटम से डेड सेंटर में क्या होगा कि आपका जो पिस्टन, जैसे हम बोल रहे थे अप जितना जा सके, ठीक है, तो इसी तरह क्या है आपका बॉटम जितना ये जा सके, ठीक है। तो मान लीजिए बॉटम यहाँ पर क्या है आपका जो मोशन होगा रेसिप्रोकेटिंग है, तो एक बार अप और एक बार डाउन, ठीक है। तो डाउन जाने में जितना ये मैक्सिमम नीचे जा सके, ठीक है, तो उसके जो ऊपर वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा पिस्टन का अपर सरफेस जहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, तो वो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे आपका बॉटम डेड सेंटर, जिस भी पॉइंट तक पहुंच पा रहा है। मान लीजिए जैसे इस पर्टिकुलर फेस में कुछ और नीचे तक आ सकता है, तो मान लीजिए यहाँ तक आ पा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये मैक्सिमम क्या इस पॉइंट तक आ सकता है, ठीक है। क्या दिखा रहा है आपका, ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को
हम लोग क्या बोलेंगे, आपका बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए फिर से वही, इट इज़ द डेड सेंटर व्हेन द पिस्टन इज नियरेस्ट टू द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, क्या आपकी क्रैंक शाफ्ट के क्या वो सबसे पास में रहे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो है डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिस्पेक्ट चेंज कर सकते हैं आप लोग डेफिनीशन में, ठीक है। हमने यहाँ क्रैंक शाफ्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप पिस्टन के मूवमेंट से भी ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, जैसे अभी हमने बात की प्रीवियस स्लाइड में कि क्या आपका जो हॉरिजॉन्टल केस है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कि इस तरह से मान लीजिए इंजन है, ठीक है, ये आपका वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक मान लीजिए आपका जो पिस्टन है, ठीक है, ये मिनिमम जो यहाँ तक पहुँच सकता है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओडीसी, मतलब आउटर डेड सेंटर, ठीक है। दोनों एक ही है, बस केस बदल जाता है, एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है, और एक बार वर्टिकल के लिए। वर्टिकल में यही नाम आपका बॉटम डेड सेंटर है, ठीक है, और यही आपका हॉरिजॉन्टल के केस में ओडीसी नाम है, मतलब आउटर डेड सेंटर। ये बेसिक जो सबसे ज़्यादा आप लोग सुनते हैं टीडीसी और बीडीसी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है स्ट्रोक, ठीक है, और स्ट्रोक लेंथ, ठीक, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है। इस इंजन की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, इसे हम मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका एल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोक जनरली जो लेंथ आपका पिस्टन अप एंड डाउन मोशन में या रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जितना लेंथ क्या है आपका कवर करता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ टॉप लिखा है या बॉटम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखिए स्ट्रोक से कन्फ्यूज़न हो तो इसीलिए क्या दिया हुआ है, आपका स्ट्रोक लेंथ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आपका स्ट्रोक लेंथ, देखिए लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज़ नोन एज स्ट्रोक एंड स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। फिर देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये आपका वही है, अगर आपको लेंथ पता है, वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है, और इस अब हम बार बार क्या है सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर है तो क्या है उसका कुछ ना कुछ डाया होगा, ठीक है। तो अब डाया है तो आपको पता है एरिया होता है, ठीक है, तो वही क्या है आपका π/4 d², ठीक है। अब अगर मैं स्ट्रोक लेंथ आपको पता चल जाए, ठीक है, तो उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, तो यही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ठीक है। मगर आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी में ये पार्ट जो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है उसको किस नाम से होता है, आपका स्वेप्ट वॉल्यूम के नाम से, ठीक है। स्वेप्ट मतलब कितना वो कवर कर रहा है, ठीक है। जैसे सफाई करने में, ठीक है, हम लोग क्या है हाँ जितना भी कवर करे एरिया वो क्या है आपका स्वेप्ट एरिया होता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि आपका जो पिस्टन है अप एंड डाउन मोशन में, ठीक है, जितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या वी एस से रिप्रेजेंट कर दें, एस मतलब स्वेप्ट, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन, स्वेप्ट मतलब कवर करना, ठीक है। जैसे स्वीपिंग, ये वर्ड आपका क्या स्वीपिंग से निकला हुआ है, ठीक है, जैसे झाड़ू जहाँ जितना भी कवर हो पाता है वो एरिया, ठीक है, वही वहाँ से निकला है आपका स्वेप्ट, ठीक है। फिर देखिए ये इसका फॉर्मूला है कि वी एस इज इक्वल टू π/4 d²L, ठीक है। फिर देखिए यहाँ डी क्या है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वो भी कौन सी आपकी इनर, ध्यान रखिएगा डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कौन सा आपका इनर डायमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रोक लेंथ, ये मैंने अभी आपको बताया स्ट्रोक लेंथ क्या है आपका ये है। फिर है इफ़ देयर आर के, हाँ अब देखिए अब हर एक आईसी इंजन में क्या ज़रूरी नहीं कि क्या सिर्फ एक ही सिलेंडर से वर्क हो, ठीक है, हम लोग क्या मल्टीपल सिलेंडर यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम अभी आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि एक ही साथ, ठीक है, एक ही इंजन में क्या है आप कई सिलेंडर यूज़ करते हैं, आपने सुना भी होगा 3 इंजन सिलेंडर, 4 इंजन सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है कि अगर किसी भी कार में, जनरली क्या है कार में ये होता है, ठीक है, तो कार में अगर आप कई सिलेंडर यूज़ करें, मतलब 4 या 3 सिलेंडर यूज़ करें तो हम क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द कार या जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दिया है इफ़ देयर आर के नंबर ऑफ सिलेंडर
then the total swept volume of the engine is K pi by 4 d square L। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये आपका क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या हो रहा है, आपको रोटरी मोशन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा या ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन का के फॉर्म को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मतलब आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो आपका रोटरी मोशन में चेंज हो रहा है। चलिए, अभी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, जैसे अभी हमने शुरुआत में आपको बताते वक्त, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखाई थी। ठीक है, कि आपका जो भी सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर वाल्व लगे होने के कारण, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन का मूवमेंट एकदम ऊपर तक नहीं रखते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या गैप क्रिएट रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए यही जो गैप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, टीडीसी के ऊपर जब आपका पिस्टन मैक्सिमम हाइट पर हो, ठीक है, तो उस हाइट को और वाल्व के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या है का, या वाल्व के बगल में जो भी आपकी फेस है उसके बीच का जो गैप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी और आईडीसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टीडीसी इज आल्सो कॉल्ड एज आईडीसी, इनर डेड सेंटर। ठीक है, फिर है आपका कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, आपका क्या है, दो वॉल्यूम के बीच का रेशियो है। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर आपने देखा कि हमने दो तरह के वॉल्यूम की बात की, कि आपका एक क्लियरेंस वॉल्यूम और एक क्या अभी स्वेप्ट वॉल्यूम की बात की। ठीक है, तो जो कंप्रेशन रेशियो है ये इट इज़ द रेशियो बिटवीन आपका वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन एंड वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ठीक, इनके बीच का जो रेशियो होगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से कि ये क्या है, आपका बीडीसी पॉइंट पर है। ठीक है, बीडीसी पर ये पिस्टन आपका पहुँच गया है। ठीक है, और बीडीसी पर पहुँचने के कारण, ठीक है, ये यहाँ पर जो भी ये वॉल्यूम है ये आप देखेंगे क्या, दो हो गए। दो का मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इससे इसको मिलाएं, ठीक है, ठीक है, अगर हम क्या इसको इससे इस तरह से मिलाएं, ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका VC। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, VC को। ठीक है, और फिर देखिए हमने अभी आपको क्या बताया, BDC से TDC, ठीक है, कि बीच का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो है स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको हम लोग पूरे को क्या बोलेंगे, आपका VS से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है रेशियो बिटवीन आपका जो है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, ठीक, और टू द वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ठीक है, तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन कितना था, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, जो भी आपका वॉल्यूम है, ठीक है, ये क्या आपका कंप्रेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका VC प्लस VS। ठीक है, और आफ्टर कंप्रेशन जो भी आपका वॉल्यूम बचा है, ठीक है, तो आफ्टर कंप्रेशन आपको क्या मिल रहा है, VC। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि R इज इक्वल टू V1/V2। तो V1 है आपका कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, ये क्या वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। ठीक, तो आप फिर देखिए यहाँ पर है VC प्लस VS अपॉन VC। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका आईसी इंजन में, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये आपसे पूछेगा जनरली। ठीक है, और इसको जनरली क्या है, हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्या है आपका आईसी इंजन के बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसको कि क्या है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो जनरली एक फिनोमिना, जब आप इतना टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एक फिनोमिना आपको बताए दे रहे हैं कि आपका आईसी इंजन वर्क कैसे करता है। फिर इसके बाद कुछ इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास
है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है इसके वर्किंग के बारे में दिखाएंगे। तो कुछ वर्किंग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या आपको चीज़ें और समझ में आएंगी कि आपका होता क्या है, या आईसी इंजन क्यों हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कहाँ से इस तरह हुआ है, तो ये आप होता क्या है, ये चीज़ हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि आपका जैसे अगर हम एसआई इंजन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है आपका फ्यूल, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ से आता है, ठीक है, इनलेट होता है, ठीक। तो जब ये आ रहा होता है तो ये क्या होता है आपका, ये जो वाल्व है क्या ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ये यहाँ पर क्या है आपका बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका ये भरा, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये पिस्टन क्या नीचे की साइड क्या मूवमेंट करता चला जाएगा, ठीक है। जब ये इनलेट वाला आपका बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फिर पिस्टन क्या होगा फिर से ऊपर साइड आएगा। तो मतलब जो भी आपका मिक्सचर है वो क्या होगा आपका कंप्रेस होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है कंप्रेस होगा, ठीक, कंप्रेस होगा। तो जैसे ही ये कंप्रेशन होगा तो यहाँ पर क्या स्पार्क प्लग से एक स्पार्क जनरेट होगा, ठीक है। तो फ्यूल आपका बर्न होगा, और जब फ्यूल बर्न होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा एक पावर डेवलप होगी। फ्यूल बर्निंग से क्या एक क्या कहते हैं पावर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एक छोटा सा डेटोनेशन टाइप होगा, ठीक है। और उससे क्या होगा आपका पिस्टन नीचे की साइड क्या मूव करेगा, ठीक है, एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो वही आवाज़ क्या है आपको सुनाई देती है आईसी इंजन में, ठीक है। तो ये क्या हल्का सा ब्लास्ट हुआ, जैसे ही स्पार्क हुआ, एयर फ्यूल मिक्सचर हुआ, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट की वजह से पिस्टन क्या होता है फिर से नीचे की साइड मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर ब्लास्ट के बाद आपका जो भी एयर फ्यूल है, ठीक है, या फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्या बर्न हो जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही ये पिस्टन ब्लास्ट के बाद नीचे जाता है, नीचे के बाद जैसे ही ऊपर आ रहा होता है तो ये एग्जॉस्ट वाल्व क्या आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सारा जितना भी फ्यूल जो बर्न हो चुका है ये सारा क्या आपका बाहर चला जाता है, ठीक। और फिर जैसे ही बाहर हुआ ये आपका पिस्टन क्या है, ये आपका जो वाल्व है ये क्या आपका बंद हो जाता है, ठीक। और पिस्टन फिर से ऐसे ही ऊपर पहुंच जाता है, ठीक। फिर से ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, फिर एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, वैसे ही आपका पिस्टन क्या नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है ये मूवमेंट कर क्यों रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी हीट इंजन के डेफिनेशन में हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं एक यूज़फुल वर्क में। कैसे कि आपने फ्यूल लिया, उसको एक साथ मिक्स किया, बर्न किया, ठीक है। फिर ये जो आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, यहाँ से क्या आपको एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रिएट हुआ, और ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में क्या किया उसने रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया, और ये रोटरी मोशन आपका चेन के थ्रू, ठीक है, आपके व्हील से कनेक्ट रहता है, ठीक है, आपके बैक व्हील से, ठीक है। और इससे क्या होता है आपके व्हील को मोशन मिलता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक काम है आईसी इंजन का, ठीक है। हीट इंजन जो है वो आपका बेसिक लॉ था, ठीक है। तो जहाँ पर हम सिर्फ यूज़ कर रहे थे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, वो काम था हीट इंजन का। आईसी इंजन का काम क्या है आपको इस मोशन हमें मिलना, ठीक है, ये क्या मोशन हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जब जिसमें हो रहा है तो वो सब जगह क्या आपको उसको हम लोग क्या आईसी इंजन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। किसी सिलेंडर के अंदर आपका कंबशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके पार्ट, ठीक है, काफ़ी सारे इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सारा देख लेते हैं, और ये सारे जो है पार्ट जो है थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं बार बार जब हम आगे भी बताएंगे तो आपको इसका यूज़ आएगा, ठीक है। देखते हैं सिलेंडर, कई सारे सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर के बाहर का जितना भी एरिया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं, जिसके अंदर पूरी आपकी ये मैकेनिज्म क्या होती है आपकी होती है, ठीक है, या जिसके ऊपर या जिसके अंदर ये रखी होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिलेंडर ब्लॉक, ठीक है। फिर सिलेंडर मतलब ये आपका ये जो पार्ट है जहाँ पर ये पर्टिकुलर आपका मोशन हो रहा है, ठीक है, या जो भी कंबशन हो रहा है। तो ये जितना ये एरिया आप देख रहे होंगे, ठीक, ग्रीन से जितना एरिया है, ठीक है, ये क्या है आपका सिलेंडर है, ठीक है। फिर इसके बाद पिस्टन क्या है, पिस्टन आपका ये जो आपका क्या रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, ठीक है, ये क्या आपका पिस्टन कहलाता है, ठीक है। फिर कंबशन चैम्बर मेनली जहाँ पर क्या ये
आपका फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंबशन चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एयर फ्यूल मिक्सचर आता है, तो ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर का इस सिलेंडर के अंदर तक आने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इनलेट मैनिफोल्ड, ठीक है। और फिर यही मिक्सचर बर्न होने के बाद जिस पाथ से आपका बाहर जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा इस पाथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा पाथ की, ठीक है। तो ये पूरा जो पाथ है वो क्या, इनलेट मैनिफोल्ड, और वाला पाथ क्या है, आपका पूरा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, जैसे हम शुरू से बताते आ रहे हैं, ठीक है। ये जो वाल्व है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इनलेट साइड पर लगा होगा उसे हम इनलेट वाल्व, ठीक है, जो आउटलेट साइड पर लगा होगा उसे क्या हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग आपका यूज़ होता है फ्यूल को बर्न करने में, ठीक है, एक स्पार्क जनरेट होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, ठीक है, एक हाई आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, ठीक है, इसी स्पार्क प्लग के अंदर, ठीक है। तो जिससे आपका छोटा सा 12 वोल्ट जो है कम से कम आपका 20,000 या 25,000 के आसपास वो वोल्टेज क्रिएट होता है, ठीक है। उस वोल्टेज में जो है हम लोग क्या यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है आपका कनेक्टिंग रॉड, ठीक। तो कनेक्टिंग रॉड ये है आपकी जो कि क्या कर रही है, पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को क्या कर रही है, आपकी कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी कनेक्टिंग रॉड, यस, ठीक है। फिर इसी तरह क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है, आपका ये पार्ट जहाँ पर ये पार्ट क्या आपका किसी रोटरी पार्ट से क्या होता है, आपका कनेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसे क्या शाफ्ट बोलेंगे, ठीक है। शाफ्ट मोस्टली वही आपका क्या मोशन के ट्रांसफ़र के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह पिस्टन रिंग, ठीक है। तो पिस्टन रिंग आपको क्या यहाँ पर मिलेंगी पिस्टन के ऊपर, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, आपको 3 रिंग मोस्टली क्या है, आपको कई और भी मिल जाती है, ठीक है, मगर क्या 3 रिंग आपको मिलती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक होती है आपकी ऑयल रिंग, मतलब जो सबसे नीचे वाली जो रिंग होगी, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑयल रिंग बोलते हैं, ठीक। और उसके ऊपर वाली को, ठीक है, आपका फर्स्ट कंप्रेशन रिंग, सेकेंड कंप्रेशन रिंग, ठीक है, या अपर कंप्रेशन रिंग या लोवेस्ट कंप्रेशन रिंग, ठीक, इस तरह से उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह गॉर्जियन पिन, ठीक है। गॉर्जियन पिन का काम क्या है, इस पिस्टन को और इस क्रैंक शाफ्ट को, ठीक है, दोनों को क्या करना, कनेक्ट करना, ठीक है। दोनों को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये जिस पिन के थ्रू कनेक्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉर्जियन पिन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, ये क्या आपका गॉर्जियन पिन का वर्क करती है, ठीक है। फिर इसी तरह कैम शाफ्ट, ठीक है। तो कैम शाफ्ट आपका ये होता है, ठीक है, ये जनरली ये क्या वाल्व के और इसके बीच में क्या दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ से दोनों के बीच में क्या है, आपका एक मोशन डेवलप होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या एक लोअर पेयर यहाँ पर बनता है, एक सरफेस कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लोअर पेयर का भी अगर आपसे कभी पूछा जाए एग्जांपल, ठीक है, तो ये क्या है आपका कैम फॉलोअर के बीच में क्या है आपका इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये क्या आपका कैम शाफ्ट, ठीक है, और ये क्या आपकी कैम, ठीक है। फिर इसी तरह फ्लाई व्हील, ठीक है। फ्लाई व्हील का रोल क्या है, फ्लाई व्हील आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर नहीं भी होगा तो याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है आपका कुछ थोड़ी देर के लिए ही सही आपकी क्या एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पार्ट क्या यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे इस रॉड से, ठीक है, आपका फ्लाई व्हील कनेक्ट होगा, फ्लाई व्हील से आपकी एक शाफ्ट कनेक्टेड होगी, फिर वहाँ से आपका क्या रोटरी मोशन का क्या शाफ्ट के थ्रू आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इसके बेसिक जितना भी पार्ट है ये आपको लगभग सभी में लगभग एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है, जितना भी इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यही जब आप जो है सीआई इंजन में जाएंगे, ठीक है, ये अभी हम मतलब डीजल इंजन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या है आपका स्पार्क प्लग की जगह, ठीक है, हम लोग क्या फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है, ठीक। आपका जो स्पार्क प्लग है ये का वोल्टेज के उस पर काम करता है, और जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है, ये आपका प्रेशर के
रिस्पेक्ट में आपका काम करेगा। ठीक है, ये तभी एक्टिवेट होगा जब एक ऑप्टिमम प्रेशर अचीव होगा। ठीक है, तो ये भी जब आएगा तब हम फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट सब में चाहे आपका SI इंजन हो, CI इंजन हो, है ना, या इसी को ही हम लोग क्या पेट्रोल और डीजल इंजन भी बोलते हैं, तो पेट्रोल डीजल में भी मोस्टली आपके लगभग जितना भी ये पार्ट है ये सब क्या होता है आपका सेम हो जाता है। ठीक है, तो बस फ़र्क क्या है आपका फ्यूल इंजेक्टर का। ठीक है, यहाँ अभी हम जो भी हमने ये बनाया है, ठीक है, ये बेसिकली आपका SI इंजन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो पहले हम SI इंजन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे डीजल इंजन भी हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये कुछ जितना भी अभी हमने आपको बताया, ठीक है, ये उसी का सब पार्ट है। ठीक है, और इसी में सब कुछ सारी जो उसके डिटेल है उसके आपको दिया होगा, जितना भी अभी तक हमने बात की वो सब। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर हमने आपको बताया कि जितना भी आउटर जितना भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा सिर्फ सिलेंडर की बात हो रही, तो ये क्या आपका सिर्फ जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर ये पार्ट, ठीक है, ये हमने आपको दिखाया था ग्रीन से। ठीक है, तो ग्रीन से जितना पार्ट था, ठीक है, वो सब क्या आपका सिलेंडर का पार्ट है। ठीक है, तो देखिए यह दिया हुआ है द हॉलो सिलेंडर का स्ट्रक्चर क्लोज्ड एट वन एंड विच सिलेंडर हेड इन विच द पिस्टन रेसिप्रोकेट बैक एंड फोर्थ। ठीक है, मतलब क्या जहाँ पर आपको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कहाँ पे मिल रहा था ये, तो मतलब ये लगभग इतना जो पार्ट है ये क्या आपका सिलेंडर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है आपको, अब देखिए आपका यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, छोटे से पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आपका टेम्परेचर भी उसी रिस्पेक्ट में क्या बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना, PV = mRT, तो वहाँ पर क्या P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, किसी भी वजह से अगर आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं या प्रेशर बढ़ाएं, ठीक है, तो दोनों ही क्या होंगे सेम उसमें बढ़ेंगे। P बढ़ेगा तो T बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब जब इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर डेवलप हो रहा है तो हम इसके लिए क्या मटेरियल जो भी यूज़ करेंगे वो क्या उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना टेम्परेचर डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो चीज़ों का। ठीक है, तो कभी भी ये जब आप कोई भी इंजन डेवलप होता है जहाँ पर इतना टेम्परेचर डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो हम इन दो पॉइंटों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो क्या मटेरियल आपका हार्ड हो और साथ ही साथ क्या है थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि हीट जितनी जल्दी क्या कर सके कोई भी मटेरियल अच्छे से मतलब रिलीज़ कर सके। ठीक है, या आगे बढ़ा सके। ठीक है, एक से दूसरे में, तो जितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो बोलते हैं वो उतनी मटेरियल उतनी तेज़ आपका हॉट और उतनी तेज़ क्या आपका कूल होता है। ठीक है, फिर देखिए कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर पार्ट पर क्या होता है आपका कंबशन अकर करता है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रीन वाला जितना भी पार्ट है ये सब क्या है आपका सिलेंडर। ठीक है, फिर देखिए सिलेंडर हेड। ठीक, तो सिलेंडर हेड होता है जनरली ये पोर्शन पूरा, ठीक है, जो कि क्या है इसको कवर करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिलेंडर हेड बोलते हैं। तो इस सिलेंडर का ऊपर का जितना भी पार्ट है ये सब क्या आपका सिलेंडर हेड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर क्या आपको हेड दिख रहा है ये पूरा, तो ये सब क्या है आपका सिलेंडर हेड है। ठीक है, फिर इसे देखिए दिया हुआ है कवर्स वन एंड ऑफ द सिलेंडर एंड कॉन्सिस्ट ऑफ वाल्व पोर्ट्स स्पार्क प्लग एंड इंजेक्टर। ठीक है, तो आप यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, तो ये जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये क्या है सिलेंडर हेड के उसमें आता है। ठीक है, अब ये पूरा जो इंटायर केस है, ठीक है, ये अगर हम जिस भी ब्लॉक से उसको कवर करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, देखिए द सिलेंडर ब्लॉक्स इज मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स। ठीक है, द सिलेंडर ऑफ ए मल्टी सिलेंडर इंजन आर कास्ट एज ए सिंगल यूनिट कॉल्ड सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल सिलेंडर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब का जो यूनिट है उसको हम एक तरह कंसीडर करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिलेंडर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा, ठीक है, ये देखिए हेड है, ठीक है, और ये पूरा क्या आपका एक ब्लॉक है। ठीक है, उसको याद रखिएगा।
ठीक है। जो जितना भी आपको किसी भी इंजन का आउटर केस जितना भी आपको दिख रहा है वो सब क्या है आपका सिलेंडर ब्लॉक। फिर देखते हैं आपका पिस्टन। पिस्टन के बारे में अभी हमने आपसे बात की, ठीक है। पिस्टन ये क्या है आपका, ये मेनली ये आपका पिस्टन है, ठीक है। ये वन पार्ट जो भी आपको दिखा रहा है देखिएगा ज़रा, ये ठीक है, ये क्या आपका पिस्टन है, ठीक है, हेड, ठीक है। ये तो देखिए जरा पिस्टन, ठीक। पिस्टन इज ए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स विच इज़ फिटेड परफेक्टली इनसाइड द सिलेंडर, ठीक। क्या है सिलेंडर के अंदर अच्छे से एकदम फिट होता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए गैस टाइट स्पेस विथ पिस्टन रिंग्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। क्या करते हैं, ये जितना भी हम लोग कंबशन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ से पास ना हो, ठीक है। मान लीजिए आप इतना प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और ये हमारा अचीव करना हमें ज़रूरी है और किसी वजह से क्या प्रेशर उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है फ्यूल को बर्न करने से, उससे क्या होगा आपकी इफ़िशियंसी जो है वो क्या होगी, लो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग इस तरह से इसका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो जो इसकी सबसे नीचे वाली जो रिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका ऑयल रिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद कंप्रेशन रिंग, ठीक है। दोनों को दो जो और रहती हैं उनको कंप्रेशन रिंग कहते हैं। सबसे ऊपर वाली टॉप कंप्रेशन रिंग ना, या उसके बाद नीचे की सेकंड कंप्रेशन रिंग, ठीक है। और इसी को फर्स्ट सेकंड करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिए दिया है द मेन फंक्शन ऑफ द पिस्टन इज टू ट्रांसमिट द फोर्स एक्सट्रैक्टेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल टू कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। मेन इसका काम क्या है पिस्टन को, ठीक है, जो भी ये ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर है ना, और इस ब्लास्ट से जो भी उसको मूवमेंट मिल रहा है, ठीक है, उस मूवमेंट को, ठीक, किस तरह का मूवमेंट मिल रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ठीक है। तो जो भी इसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिल रहा है वो क्या करना, आगे ट्रांसफ़र करना, ठीक है। क्या करना, किसको ट्रांसफ़र करेगा, वो कनेक्टिंग रॉड को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका ट्रांसमिट द फोर्स के टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिट द फोर्स, ठीक है, और किसको, कनेक्टिंग रॉड को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू कनेक्टिंग रॉड, ठीक, ट्रांसमिट फोर्स टू कनेक्टिंग रॉड विद द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब जितनी भी ये बर्निंग जहाँ पर हो रही है, ठीक है, जैसे ये वाली, ठीक है, ये जितना एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका कंबस्शन चैम्बर, ठीक है। तो दिया है द स्पेस इनक्लोज्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर बाय द सिलेंडर हेड एंड द पिस्टन टॉप ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इज कॉल्ड द कंबशन चैम्बर, ठीक है। एंड द कंबशन ऑफ फ्यूल एंड द कॉन्सिक्वेंट रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ प्रेशर इन दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो जैसे अभी हमने शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या है बहुत टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो रहा है आपका डेवलप हो रहा है, वेरी हाई, ठीक, वेरी हाई प्रेशर एंड क्या है वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो वो सब कहाँ पर होगा आपका कंबशन चैम्बर में, ठीक है। यहीं पर आपका क्या है एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, बर्न होगा, ठीक है। बर्न होने के बाद वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा और फिर वो वेस्ट क्या है आपका एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो वही सब क्या यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कंबशन ऑफ व्हील, ठीक है, ठीक, आपको देखिए दिखा रहा है क्या कंबशन ऑफ फ्यूल होगा, फिर उसके क्या रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी रिलीज होगी, फिर रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ प्रेशर, ठीक है, जिससे क्या होगा आपका प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाम से याद रखिए, ठीक है, एक बार नाम समझ में आ जाएगा तो चीज़ें कुछ लिख सकते हैं। फिर है वाल्व्स, ठीक, वाल्व जैसे अभी हमने आपको बताया इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इनलेट वाल्व जो है कंबशन चैम्बर को जो है इनलेट करेगा, मतलब कंबशन चैम्बर में आपका फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या करेगा, इनलेट करेगा, ठीक है, बर्न होगा और फिर एग्जॉस्ट वाल्व की हेल्प से क्या होगा आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक जैसे कि किसी एक घर का, ठीक, एक मेन आपका इनडोर, ठीक है, मतलब फ्रंट डोर और एक बैक डोर, ठीक, समथिंग कुछ इस तरह से, एक से एंट्री और एक से एग्जिट, ठीक है। तो कुछ इस तरह का, या आप थिएटर का एंट्री और एग्जिट मान सकते हैं, ठीक है, कि आपका एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है, बर्न हुआ, बर्न होने के बाद क्या हो गया, वो आपका बाहर चला गया,
ठीक है, तो वो सब क्या वाल्व। देखिए दिया हुआ है, प्रोवाइडेड इन द सिलेंडर हेड फॉर द एडमिशन ऑफ फ्रेश एयर और एयर फ्यूल मिक्सचर इन द इंजन सिलेंडर एंड फॉर रिजेक्शन ऑफ बर्न गैसेस। ठीक है, आएगा, बर्न होगा और क्या बाहर चला जाएगा। ठीक, ऑपरेटेड बाय कैम्स एंड कैम शाफ्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये क्या आपका लोअर पेयर का एग्जांपल है। ठीक है, कैम और कैम शाफ्ट। ठीक है, उसी के हेल्प से हम लोग क्या इसमें एक कंटिन्यूअस मोशन प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, उसको हमें अलग से कुछ अरेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये एयर है, सिंपल एयर की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको मिक्सचर एक साथ अंदर आएगा। ठीक है, और कहीं पर सिर्फ क्या है आपका सिर्फ फ्यूल आएगा। ठीक है, या सिर्फ एयर आएगा। तो इस तरह से कई इस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, फिर ये इनलेट मैनिफोल्ड, ये हमने आपको बताया कि ये जो पूरा पाथ है, ठीक है, जब आप एयर को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, कंबशन चैम्बर तक का। ठीक है, तो वो जो पाथ, जो जिस पाथ के थ्रू वो कंबशन चैम्बर आएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनलेट मैनिफोल्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो द मेटल ट्यूब विच कनेक्ट्स द इनटेक सिस्टम टू द इनलेट वाल्व ऑफ द इंजन। ठीक है, फिर आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको जो सिस्टम, जो भी आपकी गैस बर्न हो गई उनको बाहर करेगा। ठीक है, कनेक्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम टू द एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ द इंजन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दोनों के बारे में आपसे एक बार पहले भी आज डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये आपका स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग इज़ लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द सिलेंडर ऑफ एसआई इंजन। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। ठीक है, ये देखिए, ये है एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये स्पार्क प्लग है। ठीक है, तो यहाँ मैंने दिखाया कि स्पार्क जनरेट होगा जिससे फ्यूल बर्न होगा। ठीक है, उसका मेन काम क्या है, स्पार्क को जनरेट करना। लगभग 20,000 टू 25,000 वोल्ट के आसपास की स्पार्क जनरेट होती है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यही है, इट इनिशिएट्स द कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, इसी की वजह से आपका क्या फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, फिर क्या है आपका पिस्टन जो है गॉर्जियन पिन से कनेक्ट होता है। ठीक, और ये क्या है, जिस रॉड के थ्रू, ठीक है, नीचे आपका क्रैंक से कनेक्ट होता है। ठीक है, वही क्या आपका कनेक्टिंग रॉड कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एलिमेंट विच इंटरकनेक्ट्स पिस्टन एंड द क्रैंक। ठीक है, फिर है ट्रांसफॉर्म द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन। ये हम आपको शुरुआत से ही स्लाइड में आपको दिखाते आ रहे हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या हो रहा है, आपका जो है रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कनेक्टिंग रॉड है, ये आपकी यहाँ से कनेक्ट होगी। ठीक है, उसमें मूवमेंट होगा, तो ये क्या इस तरह से मूवमेंट वो रोटरी मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो इसके दो एंड्स हैं, एक स्मॉल एंड होता है, ठीक है, एक आपका बिग एंड होता है। ठीक है, स्मॉल एंड आपका पिस्टन से कनेक्ट रहता है। ठीक है, और जो बिग एंड है, ठीक है, वो आपका नीचे क्रैंक शाफ्ट या क्या क्रैंक से पिन से कनेक्ट रहता है। तो देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गार्जियन पिन। ठीक है, तो गार्जियन पिन याद रखिएगा, जो पिस्टन को कनेक्ट करता है कनेक्टिंग रॉड से। ठीक है, फिर जरा क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट, जो उसका बिग एंड है, ठीक है, वो क्या आपका इस साइड पर कनेक्ट रहेगा, इस साइड पर। ठीक है, तो यही क्या है, जो छोटा सा ये पार्ट है इसको, ठीक है, इसको हम लोग क्या है क्रैंक बोल सकते हैं। ठीक है, और ये आपका शाफ्ट है जिससे क्या आपका मोशन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, टू द फ्लाई व्हील। ठीक, तो वही देखिए दिया, क्रैंक इज द रोटेटिंग मेंबर विच रिसीव्स पावर फ्रॉम द कनेक्टिंग रॉड एंड ट्रांसमिट टू द क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, फिर क्रैंक शाफ्ट इज द प्रिंसिपल रोटेशन पार्ट ऑफ द इंजन विच कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने कभी पुराने स्कूटर में कभी देखा होगा। ठीक है, जहाँ आप किक मारते थे तो वहाँ पर एक छोटा सा एक व्हील घुमा करता था। ठीक है, तो उसको क्या हम लोग फ्लाई व्हील बोलते थे। ठीक, जो कि अब दिखता नहीं है, अगर वहाँ पर आपको जो है स्कूटर में आपको दिखता है। ठीक है, दिखता था मतलब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीज़ें कनेक्ट रहती हैं। ठीक, फिर आपका ये पिस्टन रिंग्स, इसके बारे में हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो कि क्या है आपको प्रेशर को डेवलप करने में या मेंटेन करने में उससे हम लोग हेल्प लेते हैं। ठीक है, फिर ये आपको दिया, मैंने आपको बताया। ठीक है, ऊपर की जो दो रिंग है उसको कंप्रेशन रिंग, नीचे वाली जो रिंग है उसको ऑयल रिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर गार्जियन पिन बताया, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को
कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर आपका कैम शाफ्ट ये क्या आपको एग्जॉस्ट वाल्व इनलेट वाल्व को क्या है मोशन प्रोवाइड करती है कि क्या ये टाइम से अपने आप ओपन हो, ठीक है, और टाइम से अपने आप क्या बंद हो, ठीक है। ये इसका काम है कैम शाफ्ट का। तो देखिए दिया भी है पार्ट्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द टू वाल्व्स, ठीक है। एक ओपन होगा तो दूसरा बंद होगा, ठीक है, फिर दोनों बंद होंगे, फिर आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तब इनलेट वाल्व बंद होगा, जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम मोशन अरेंज करते हैं। तो टाइमिंग चेन थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखते हैं कि जब ये ओपन हो और क्लोज हो, ठीक है। फिर ये कैम आपको बताया कि कैम शाफ्ट में ये क्या आपका कनेक्ट होता है। फिर ये देखिए कि आपका फ्लाई व्हील है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील क्या करता है, जो भी एनर्जी रहती है उसको क्या करता है कुछ हद तक क्या करता है आपका एब्जॉर्ब कर लेता है या उसको स्टोर कर लेता है। एब्जॉर्ब नहीं, आपका क्या स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो जैसे जैसे यूज़ होता है उसको हम लोग निकालते जाते हैं, ठीक। तो देखिए हैवी व्हील माउंटेड ऑन द क्रैंक शाफ्ट, इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक एंड रिलीज इट ड्यूरिंग नॉन पावर स्ट्रोक, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक, जब आपका गैस आपके कंबशन चैम्बर में आ रही है तो पिस्टन क्या नीचे जाता है, ठीक है। फिर नीचे से वो ऊपर जब जाता है, ठीक है, तब उस टाइम उस समय क्या उसको पावर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो पावर उस टाइम पर ये क्या करता है आपका फ्लाई व्हील ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स, ठीक है, या होल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब तो मतलब हो गया कि पूरा करना, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टोर इसको कर सकते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब की जगह क्या आपका स्टोर, ठीक, याद रखिएगा इसको स्टोर। फिर ठीक है, फिर क्या है रिड्यूस द टॉर्क एंड स्पीड फ्लक्चुएशन, ठीक है। इससे मान लीजिए कुछ अचानक से कुछ आपका मूवमेंट में कुछ दिक्कत हुई तो भी क्या करता है ये फ्लाई व्हील उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब मतलब सॉरी स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो जो भी फ्लक्चुएशन अचानक से जो क्रिएट होते हैं, ठीक है, वो आपको उतने आउटपुट में देखने को नहीं मिलते हैं। वो काफ़ी हद तक आपका फ्लाई व्हील क्या करता है उसको होल्ड करता है चीज़ों को, ठीक है। सपोर्ट्स फॉर क्लच मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्लच के जब आपका मोशन का ट्रांसफ़र जब आप क्या व्हील पे दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उस जब आप ये ट्रांसफ़र होता है तो उसके लिए क्या क्लच का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी इसका क्या काफ़ी रोल है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आप क्या करते हैं इंजन के मोशन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका फ्यूल पंप, ठीक है। तो ये तो फ्यूल जिस भी के थ्रू है ना, जहाँ भी आपने फ्यूल को स्टोर किया है, जहाँ से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, तो जिस पंप के थ्रू आएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग पंप बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली ड्राइवन पंप टू सप्लाई फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द इंजन, ठीक है। याद रखिएगा जहाँ भी रिजर्वायर है इंजन तक इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये आपका इसके बाद जो है आईसी इंजन को हमने जो है कुछ इस बिहाफ पर, ठीक है, आपका कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या आपका बेस्ड ऑन कंबशन के बेस पर हमने इसको दो उसमें डिवाइड कर रखा है। एक आपका ऑटो साइकिल और एक डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल को ही क्या हम लोग एसआई इंजन बोलते हैं, ठीक है, और डीजल साइकिल को हम लोग क्या सीआई इंजन बोलते हैं, ठीक, मतलब आपका स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन, ठीक है। अगर हम इसको स्ट्रोक के बेस पर, ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रोक अगर हम देखें तो हम क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक 2 स्ट्रोक इंजन और एक क्या आपका 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जो है इसके वर्किंग के बारे में, ठीक है, हम लोग क्या है आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरा कोशिश करेंगे कि आपके पूरा स्लाइड से अच्छे से आपको बताया जाए, ठीक है, मोशन का जितना भी मूवमेंट है किस तरह से आपका इंजन कर रहा है, ठीक। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी एसआई इंजन के ऊपर होगी, ठीक है। थैंक यू।